नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको मेरी आवाज आ रही है नाया? जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। Let's start then. Do you remember the words? Did you revise them? Kinda. Oh, some of them. Got it. Give me a sec. I will open the book. Okay. Okay. So, what is meaning of shadid? Can you tell me meaning of shadid? Shadid. Strong or like severe. Good. What is akrab? Akrab It's like mean. qareeb, Oh, but close, like nearer, closer. near is a qareeb and it will be nearer, like Oh, comparative. nearer. Okay. Nearer. Good. Then we have a'lamu. What is आलम? एक होता है इल्म, एक होता है आलम, एक होता है आलिम। ये था, ये थर्ड वन देखो। Oh, more informed, better knowing, more informed. या अलीम इज इन्फॉर्म और नोर, जो हु नोज, ठीक है। Oh, और okay. आलम उससे मोर इन्फॉर्म। ओके, Oh, सेम गोes फॉर कबीर एंड अकबर। व्हाट इज कबीर? Kabir is big, Big, and akbar will be bigger. bigger. So they are like, comparative words. Their root Oh, letters okay. will be same. Qareeb, kaf, ra, ba, and akrab is also kaf, ra, ba. So near का meaning जरूर आएगा इसमें, kaf, ra, ba वाले लफ्ज में। इसी तरह kaf, ba, ra जिस वर्ड में आएगा उसमें आपका big का meaning आएगा, big and bigger. Kasir and aksar also have the same root words. और kasir is much and aksar is more or most. And sometimes इसका meaning often भी होता है, often. Oh, Okay, these are different ones. Okay, what is the meaning of ahda? It's from hidayah. Ahda is a comparative of hidayah. What do you think? Ahda. What is Better guided. hidayah? Better guided. Hidayah means guidance, right? तो हम कहते हैं हर शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे, हिदाया अरबिक में कहेंगे हिदाया, और हिदाया का मतलब होता है गाइडेंस और रियल पाथ जिस पर अल्लाह ताला डाले। तो आहदा उसका कंपैरेटिव है, बेटर गाइडेड, मोर गाइडेड। जैसे अकबर कंपैरेटिव था कबीर का, और अकरब कंपैरेटिव है करीब का, और आलम है अलीम का। ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। ये एक पैटर्न है, अकरब अफआल का पैटर्न। इस पैटर्न पर जितने वर्ड्स आएंगे वो कंपैरेटिव होंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हमीद? हमीद। Hamid. Yes, Hamid. Oh, praiseworthy. Praiseworthy. What is Hamim? Warm boiling water. Boiling. Sami. Samia. The one who listens. Yes. And what is Amin? Trustworthy. Rahman. Compassionate. Compassionate, more gracious, good. What is the meaning of Awwal? First. First. Akhir. Last. Good. Rabb. Lord. Lord. Wakil. Huh? The one who Wakil. takes Wakil. care of a thing for another. Yes. One who takes care. Anyone who takes care will be wakil. एक दुआ है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, that I only put everything on Allah and He is the best taking care of everything. Okay, what is ahakka? Ahakka,
ahqa, मोटे काफ से. More entitled. More entitled, more Yes, worthy. and good. Shakur, शुक्र से है ये. Gratefulness or most Grateful. grateful. Grateful, good, pretty grateful. तवाब, तौबा से है. Most forgiving. Forgiving, good. गफूर, Most forgiving. forgiving. again most forgiving. तवाब का वैसे मतलब होता है तौबा, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, यानी हर तरह की तौबा कबूल करने वाला. और गफूर का मतलब होता है माफ करने वाला. तो उर्दू में मीनिंग हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट मिलता है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश में देखो दोनों का मीनिंग लिखा हुआ है मोस्ट फॉरगिविंग, लेकिन उर्दू में हमें ज्यादा अच्छा मिलेगा. गफूर होता है माफ करने वाला, और तवाब होता है तौबा, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला. तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. ओके, व्हाट इज नजीर? Warner. वार्नर. नसीर, Strong helper. Strong helper. yes, helping, very much helping. What is salam? Peace. 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 What is ahsan? Better. Better. What is sariya? And Quick. sariya, Quick. Fast. quick or Steady, fast. quick, Sorry. fast. What is latif? Subtle. Subtle. Yes, subtle. Okay, good. फिर हमने आज हम ये देखते हैं. I think this is the easiest page. First word is abadan. Abadan means forever, हमेशा रहने वाला. abadan. और अजर means reward. साहिब means companion, fellow. ठीक है. असहाब इसकी प्लूरल बहुत दफा कुरान में इस्तेमाल हुई है. 94 टाइम्स ये वर्ड यूज हुआ है. जहां भी अल्लाह ताला कहते हैं दे विल बी विद द पीपल ऑफ जहन्नम, वहां पे असहाबुल जहन्नम लिखा हुआ है. जहां भी कहते हैं कि दे विल बी विद द पीपल ऑफ जन्ना, वहां पे असहाबुल जन्ना लिखा हुआ है. तो असहाब का वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है. साहिब का भी कहीं कहीं आया है, लेकिन असहाब ज्यादा आया है. बट देयर मीनिंग विल बी कंपेनियन. साहिब इज वन कंपेनियन, असहाब इज कंपेनियंस. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज आकिबा. आकिबत कहते हैं आखिरत को, द एंड. जो हमारा एंड है उसको आकिबा कहेंगे, आकिबत. अजल मीन्स टर्म. अजाब मीन्स पनिशमेंट और टॉर्मेंट, व्हाटएवर यू वांट टू रिमेंबर. अल आखिरा, द हेयर आफ्टर. वैसे आखिरा का मीनिंग भी एंड ही होना चाहिए, जो जो आकिबा का मीनिंग है, क्योंकि आखिरत आखिर से है. आखिर का मीनिंग होता है एंड, लेकिन इस आखिरा का मीनिंग होगा वो एंड जो कि इस एवरीथिंग का एंड जो होने वाला है, जो कि क़यामत में होगा. इकाब होता है वो चीज जो गुनाह की वजह से बनती है. ठीक है. उसे कहते हैं चस्टाइजमेंट या एज अ रिजल्ट ऑफ सिन. अलीम का मतलब होता है दर्दनाक, यानी पेनफुल. जो चीज बहुत ज्यादा पेन देने वाली है उसको कहेंगे. कयामा इज रिसरेक्शन. क्यामत क्या है? रिसरेक्शन. लिका का मतलब होता है मीटिंग. मीटिंग समवन इज लिका. सवाब का मीनिंग रिवार्ड, रिवार्ड. सो ये देयर आर टू वर्ड्स फॉर रिवार्ड. व्हाट आर दोस टू वर्ड्स? रिवार्ड के बल्कि ये तीन तीन लफ्ज आए हुए हैं. कौन कौन से हैं? Ajr. Second one, Ajr. yes, Jaza. jaza and Jaza. And jaza and Sawab. सवाब. ठीक है. सवाब साथ से है. सवाब, अजर, और इसकी जमा आती है उजूर. उजूर भी कुरान में यूज हुआ है. और जजा, जजा हम कहते हैं जजाकल्लाह खैर. अल्लाह ताला आपको इसका रिवार्ड दे, यानी बेस्ट रिवार्ड दे. जजा का मतलब होता है बेस्टेस्ट रिवार्ड, सबसे अच्छा रिवार्ड. ओके. जन्नत का मतलब आपको पता है. वैसे इसका मतलब गार्डन भी आता है, लेकिन इसका मतलब पैराडाइज भी हो सकता है. जहन्नम हेल को कहते हैं. और कोई चीज जहन्नम का एक और मीनिंग आता है फायर. समटाइम इट्स यूज्ड फॉर फायर इन कुरान, समटाइम्स फॉर हेल. बट हेल भी फायर ही है, इसलिए हम फिर उसको हेल भी जब कहते हैं तो मीनिंग फायर ही लिया जाता है. हिसाब मीन्स रेकनिंग, जो हमारा हिसाब होगा, जो हमसे पूछा जाएगा. सा मीन्स आर. एक मीनिंग इसका सा का एक और होता है, और एक होता है वॉच, जो हम पहनते हैं टाइम देखने के लिए. आजकल तो लोग नहीं पहनते. ओके. नेक्स्ट वन इज यौमा इजिन. यौमा इजिन मीन दैट डे. यौम मीन्स डे, इजिन जब साथ लग जाता है तो दैट डे. यौम मीन्स डे एंड इज प्लूरल इज अय्याम. वैलुन मीन वो अनटू, यानी वैलुन वो अनटू, उस वक्त तक उसका उसकी दुश्मनी. नहर या अनहार, इट मीन्स रिवर, रिवर एंड रिवर्स. नार मीन्स फायर. मुसम्मा मीन्स फिक्स्ड. लिका मीन्स मीटिंग. कयामा रिसरेक्शन. ओके. व्हाट इज अरबिक फॉर फॉरएवर? आप दोनों बताएं.
फॉरएवर कौन सा वर्ड है? वेयर इज फॉरएवर? abadan, अबदन. व्हाट इज अरबिक फॉर कंपेनियन? जी अनाया बताइए, आप दोनों बताइए. कंपेनियन, फेलो. sahib, साहिब या असहाब? साहिब या असहाब. और ये कितनी दफा आया? 94. आपने दोनों याद करें हैं. साहिब या असहाब. साहिब मीन्स how many companions? wal companion, One. And ashab means multiple, Many. many companions. ठीक है. Ajr mean Reward. reward. And उजूर का क्या मतलब होगा फिर? Many rewards. Yes. Rewards नहीं, rewards. मैंने कहने की जरूरत नहीं. Rewards. ठीक है. Reward and rewards. Okay. What is meaning of what is Arabic for end? Oh wow. Yes. Wait, ये बोलो. and आकिब. عاقبة. आकिब. It's आकिब. Okay. Oh, What is Arabic for term? أجل. adala, One fixed term को कहते हैं अजल. What is Arabic for torment? عذاب. Torment क्या? Azab. What is Arabic for hereafter? الآخرة. Al-akhirah. What is iqab? Sorry. What is meaning of iqab? Iqab. chastisement, Chastisement. Chastisement, yeah. Chastisement, yeah, as a result of sin. Iqab means chastisement means as a result of sin. ठीक है. What is Arabic for painful? أليم. alim, Alim. Okay. If I want to say painful torment, how I'll say that in Arabic? أليم Painful عذاب. torment. पहले أو अच्छा إنه अरबिक में हम عذاب क्या बोलते हैं? أليم. azabun अजाब عذاب alim, أليم. عذاب أليم. Very good. Very good. Okay. What is meaning of resurrection in Arabic? قيامة. Qiyamah. Qiyamah is resurrection. What is Arabic for reward in Arabic? ثواب. And and أجر. and ajr, جزاء. jaza. All three are for reward. और reward. तीनों ही अल्लाह ताला ने यूज किए हैं. What is Arabic for fire? fire. نار. Nar. What and the Arabic यहाँ पे क्या लिखी हुई है? जहन्नम. जहन्नम का मीनिंग फायर आता है. जब बहुत ज्यादा फायर की बात करनी है अल्लाह ताला ने वहां भी जहन्नम का वर्ड यूज किया है. लेकिन जहन्नम इज जनरली यूज फॉर जहन्नम एंड जहन्नम इज हेल. ओके. So what is Arabic for reckoning? Day of reckoning. حساب. Hisab. Okay. What is meaning of sa'a? day of resurrection. या इसका सिंपल मीनिंग होता है hour, like time, the final hour. the final. Yes. जब कुरान पाक में अल्लाह ताला यूज करते हैं तो फिर sa'a का मीनिंग हो जाएगा final hour. ठीक है. फाइनल आवर. और जब वैसे साआ का हम किसी और अरबी बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे मीनिंग आएगा टाइम या वॉच. ठीक है. यहाँ पे उस घंटे की, उस टाइम की बात हो रही है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा. डे ऑफ रिसरेक्शन. दोबारा से लोगों को उठाया जाएगा. ओके. यौमा इज़िन मीन्स दोहा. यौमा इज़िन that day, दैट डे. गुड. अच्छा ये वाली लाइन उससे भी इजी है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ आया? sign, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सरिश, खैरियत? जी जी आ रही है बच्चे, बोलो. जी जी बोलिए. ये मैक्सिमम 30 to 45 मिनट्स की होगी. ज्यादा लोग नहीं है तो डिपेंड करता है कितने लोग. तुम्हें पता है मैं सबसे बारी बारी सुनती हूँ. उस हिसाब से फिर 1 घंटे तक ही जाएगी मैक्सिमम, ज्यादा नहीं होगी. जुलाई से शुरू होगी. जुलाई से शुरू होगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीक से. हाँ नेक्स्ट वीक. हाँ आ गया. हाँ इंशाल्लाह. इंशाल्लाह आई विल ऐड यू. आई विल ऐड यू. ठीक है. ओके. ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. बस मैं अभी क्लास ले रही थी इसलिए जल्दी में हूँ.
अच्छा माशाल्लाह, चलो अच्छी बात। अच्छा, आजकल मैं इसको थोड़ा फिरने दे रही हूँ। नहीं सॉरी, नहीं नहीं फारिग नहीं हूँ, इंशाल्लाह ट्यूसडे को बात है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सॉरी बच्चों, ये कभी कभी कॉल करती हैं, मजबूरी हो जाती है उठानी। जी, आया जो है ना, आया वो बेसिकली जो अल्लाह ताला ने जो हमारे कुरान पाक भेजा है, उसके अंदर जो वर्सेस ऑफ कुरान है उनको कहते हैं आया। और वर्सेस ऑफ कुरान आर लाइक अ साइन फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, तो इसलिए जो आया है, इसका मीनिंग हम साइन इंग्लिश में लिख देते हैं, यानी ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की निशानी है हमारे पास। यानी ये वर्सेस जो है हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट, राइट। दैट्स व्हाई आया का मीनिंग एक वर्स मीनिंग भी आप याद कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादा मीनिंग यूज होता है इंग्लिश में वो साइन है। डिड यू गेट माय पॉइंट? समझ लग गई? ओके गुड। बैजिना का मीनिंग होता है एविडेंस। ठीक है, बैजिना का मीनिंग साइन भी आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एविडेंस लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। कुरान मीन्स रीडिंग एंड रिसाइटेशन भी, इसका मतलब रिसाइटेशन भी है, रीडिंग भी है, और कुरान का मीनिंग कुरान भी। जब हम बुक की बात करते हैं तो कुरान का मीनिंग होगा, वो मतलब बुक का नेम है तो हम उसको कुरान ही कहेंगे। लेकिन जब हम इसका मीनिंग में जाते हैं, लिटरल मीनिंग में, इट विल बी रीडिंग या रिसाइटेशन। Next word is an'am. An'am word in Urdu it means reward, but in Arabic it means cattle. ठीक है, अनआम का वर्ड कुरान के अंदर आया हुआ है। अल्लाह ताला ने जहाँ ह्यूमंस को कह रहे हैं कि आई हैव रिवॉर्डेड यू विद कैटल्स एंड विद फील्ड्स एंड विद फ्रूट्स एंड विद दीज थिंग्स, तो ये 32 टाइम्स अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया अनआम। ठीक है, कैटल्स। जबल पहाड़ को कहते हैं, जबल तूर है उधर मक्का में, मदीना में जो जबल है, वो जबल शुरू में बोलते हैं, फिर आगे हम उसका नाम ले लेते हैं। तो जबल मीन्स माउंटेन, और जिबाल इसकी प्लूरल है, और दोनों ही कुरान में यूज हुई है, रिमेंबर दैट। जबल मीन्स माउंटेन, जिबाल मीन्स माउंटेन्स। बहर मीन्स लार्ज रिवर। ओके, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ नहर? नहर का क्या मतलब था? River. रिवर, दैट इज ऑल्सो रिवर, लेकिन वो स्मॉल रिवर। बहर मीन्स लार्ज रिवर, जब जैसे सी भी हो सकता है उसमें, इन्होंने लार्ज रिवर लिखा हुआ है, वैसे सी इसका मीनिंग होना चाहिए। तो बहर मीन्स सी एंड नहर मीन्स रिवर, रिमेंबर दैट। और कुरान में दोनों ही यूज हुए हैं, देखो 38 टाइम्स बहर यूज हुआ है और 54 टाइम नहर यूज हुआ है। नहर की जमा अनहार, नहर की प्लूरल विच मीन्स रिवर्स, और बहर की प्लूरल की बिहार। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर कहीं बिहार कुरान पाक में नहीं आया हुआ इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा हुआ। Anyway, next word is shams. Shams means sun. Qamar means moon. Lail means night. Lailun nahar. Lailul लैलुल कदर कहते हैं हम, कदर वाली रात, यानी स्पेशल नाइट्स जो होती हैं रमजान की, उसके सभी लैल का वर्ड आता है। तो लैल मीन्स नाइट, और नहार, वर्ड नहार मीन्स वो बिहार, बहार है, बिहार है, जिसका मतलब है सीज। नहार का मीनिंग होगा डे। ठीक है, नहार कम यूज होता है डे के लिए, ज्यादा यौम यूज होता है। यौम यहाँ पे लिखा हुआ है, यौम मीन्स डे एंड नहार मीन्स डे, आपने दोनों यूज करना है। लेकिन आप ये गौर करो कि नहर की जो प्लूरल है वो नहार नहीं है, वो अनहार है, वो डिफरेंट है। सो हम नहार को नहर से मिक्स नहीं करना। नहर एंड अनहार मीन रिवर एंड रिवर्स, और नहार मीन्स डे, एंड यौम मीन्स डे एंड नहार मीन्स डे, रिमेंबर दैट। देन अर्थ का मतलब होता है अर्थ, और समा का मतलब होता है स्काई, और प्लूरल बहुत यूज हुआ है। समावात मीन्स स्काईज। रसूल मीन्स मैसेंजर, रुसुलुन मीन्स मैसेंजर्स। नबी मीन्स प्रॉफिट। रसूल का मतलब प्रॉफिट नहीं है, रसूल का मतलब होता है मैसेंजर। मैसेंजर कोई भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, एंजल भी हो सकता है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के लिए भी रसूल का वर्ड यूज किया है। सो इट मीन्स कि रसूल इज नॉट स्पेसिफिक वर्ड फॉर द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, जो कि प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट जहाँ पे स्पेसिफाई करना, वहां पे नबी यूज होता है। और इसकी 3 प्लूरल कुरान में आपको मिलेंगी, नबी यूना, नबी यीना और अंबिया। ठीक है, नबी यूना, नबी यीना एंड अंबिया। नबी की प्लूरल, तीनों का मतलब प्रॉफिट्स। ओके, यहाँ तक पहले ये आपको बस आता है। समूद वाज अ प्रॉफिट पीपल ऑफ साले, यानी साले अलैहिस्सलाम के जमाने में जो कौम थी, उनके नेशन थी, उसका नाम समूद था। ठीक है, सो इट्स अ नेम। इसी तरह जो आद थे, दे वर द पीपल ऑफ हूद अलैहिस्सलाम।
और जो फिरौन था वो आपको पता है, हु वाज फिरौन? हु वाज फिरौन? The king in Pharaoh. Prophet Musa's time. Pharaoh at the time of Prophet Musa. Basically all the pharaohs, even they were not in the time of Musa, still they were pharaohs, they were called Fir'aun. लेकिन ये जब कुरान में जिक्र आता है हज़रत मूसा के साथ तो एक स्पेसिफिक था, उसका मुझे नाम भूल गया, उसका There अपना were स्पेसिफिक multiple नेम था, लेकिन pharaohs. याद है वो मल्टीपल फेरस, मतलब वो एक के बाद उसका बेटा बन जाता था, फिर उसका बेटा, इस तरह से वो उनकी चेन चलती रही और वो कितने साल उन्होंने खुबत की वहां पे। एनीवे, हियर आर द नेम्स, आदम, नूह, इब्राहिम, इनका नेम का मीनिंग नेम ही होता है। लूत, इस्माइल, इसहाक, याकूब, इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम का निक नेम, जो उनका पॉपुलर नेम था वो था इसराइल, रिमेंबर दैट। याकूब अलैहिस्सलाम का जो पॉपुलर नेम था वो इसराइल था, ठीक है, निक नेम नहीं आप इसको कह सकते, ये एक लकब कहते हैं अरबिक पे हम, ऐसा नाम होता है कि वो एक स्पेसिफिक नाम किसी को इज्जत देने के लिए रखा जाता है। निकनेम तो बाज़ वक़्त हम किसी को इंसल्ट करने के लिए भी रख लेते हैं, मोटा, पतलू ऐसे करके भी बोल देते हैं उर्दू में जैसे, तो वो नहीं था, ये अच्छा नाम था। तो इसराइल कहा करते थे उनको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हु वाज हजरत याकूब? उनके बेटे कौन से बेटे उनके प्रॉफिट थे? Prophet Yusuf. प्रॉफिट यूसुफ। वो जिनके 12 बेटे थे वो ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो कुरान में पूरी तफसील से आया हुआ है कि हजरत याकूब के 12 बेटों के नाम पर 12 ट्राइब्स चले थे आगे, और अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 पानी के वो बनाए थे, उनके उनकी डिमांड पर। वहां पे पानी नहीं था जहाँ पे फिर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने 12 वो क्या कहते हैं, लेक्स बनाई थी उनके लिए वहां पे। एनीवे, सो इसराइल जो है, अभी जो इसराइली हैं ये हजरत याकूब से चले हैं। ये हजरत याकूब के वो जो 12 बेटे थे, हजरत यूसुफ और बाकी सारे, बिन्यामीन और बाकी 10 बेटे, और इन 12 से आगे उन्हीं में से ये इसराइली जो अब हैं, ये कहते हैं कि हम उन्हीं के खून हैं, क्योंकि ये किसी को कन्वर्ट नहीं होने देते, तो ये कहते हैं हमारे में अभी तक हजरत याकूब का खून है, इसराइल का खून है, ठीक है। तो ये अपने आप को बड़ा प्राउडली बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहते हैं इस वजह से, दैट्स व्हाई दे आर सो प्राउड, और इतना ज्यादा तकब्बुर है उनके अंदर। एनीवे, आगे चलते हैं। तो इसराइल उनका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम का। यूसुफ आगे उनके बेटे, हूद अलैहिस्सलाम, शुएब, सोले, मूसा, ईसा, और इब्नु मरियम कौन थे? हजरत ईसा को ही इब्नु मरियम कहा जाता है, मरियम का बेटा। ईसा इब्नु मरियम, ईसा मरियम का बेटा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि समूद कौन से वाले प्रॉफिट की कौम थी? समूद, समूद कौन से प्रॉफिट की कौम? Prophet Saleh. प्रॉफिट साले। और आद कौन से वाले की थी? Prophet Hud. और इसराइल कहाँ से स्टार्ट हुए? Yeah, Prophet. याकूब अलैहिस्सलाम। Prophet Yeah. Yaqub. इसराइल वाज अनदर नेम ऑफ प्रॉफिट याकूब, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और इब्राहिम और इस्माइल का क्या ताल्लुक था आपस में? Father and son. फादर एंड सन। There was एंड father दैट्स and व्हाई, son. हाँ, हजरत इब्राहिम ट्राई टू स्लॉटर हजरत इस्माइल, और उनकी याद में हम उनके ये जो रिचुअल था, इसको फिर अल्लाह ताला ने इबादत बना दिया, और उसके लिए हम ये स्लॉटरिंग करते हैं जो हम हर साल करते हैं, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रसूल? Prophet No, मैसेंजर। messenger. व्हाट इज Messenger. गुड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जबल? जबल तूर, mountain. Jabal. Mountain. माउंटेन। व्हाट इज बहर? Sea, like a large river. या Mm. सी। शम्स, Sun. Sky. Oh yeah, sun. सन। कमर, Moon. Moon. मून। लैल, Night. नाइट। नहार, Day. Day. डे। अर्दुन, The Earth. earth. अर्थ। समा, Sky. Sky. समावात। Skies. Skies. बय्यिनात, Evidence. Evidences. एविडेंसेस, यस, इट इज द प्लूरल, पीएल मींस कि ये सिंगुलर नहीं है। आयात, Signs. Sign. साइंस। आया या आयत, Sign. It's a साइन। sign. यौमा इज़िन, That day, the last day. day. यस, दैट डे। यौम, Day. Day. अय्याम, Days. Days. वैलुन, ये थोड़ा मुश्किल सा है, Woe वो unto. अनटू, Woe unto. बस इसको रट्टा लगा लो, वही वही, जब ये सेंटेंस में आएगा फिर हम इसे समझेंगे। वैलुन, वो अनटू। नहर, River. River. अनहार, Fire. Rivers. Wait, no. Rivers. रिवर्स। Rivers. नहार, Day. डे। Day.
Nahar means river, Rivers. river. Anhar river. means rivers, anhar, rivers, river, and nahar, Day. day, day. Yom, day, Day. day. Good. Ayam, days, Days. days. Musamma, fix, Fixed. fix. Liqa, Meeting. meeting. Yes. Qiyamah, Resurrection. good. Iqab, chastisement, Chastisement. good. Azab, torment, azab, Either torment. azab, torment. Yes. Aqibah, and And sahib, companion, companion. ashab, companions, Companions. good. Abadan, Forever. forever, okay. Al-akhirah, the The hereafter, hereafter. hereafter. Alim, painful, Painful. sawab, reward, jahim, hellfire, Hellfire. jaza, Reward. reward, jannah, Garden. garden, jannat, Gardens. gardens, jahannam, The hell, hellfire. hisab, reckoning, Reckoning. sa'ah. hour The or last day of hour of their resurrection, resurrection. Yes. All good. Samud, The people people of of Saleh, Salih. Ad, people of People Hud, of the Prophet Hud. shaitan, shaitan, Shaitan. शैतान इंग्लिश का वर्ड तो नहीं डेविल ओके Satan. शयातीन क्या होगा shaitan, Satan. शयातीन इज द shaitans, शैतान को सैटन कहते हैं ना satans, सैटनिक एक पता नहीं पाकिस्तानी था कि इंडियन था वो आदमी उसने वर्सेस लिखी थी और उसने बुक का नाम लिखा था वर्सेस ऑफ सैटन कुछ इस तरह से उसने बुक का अपनी नाम रखा था उसका नाम है सलमान रुश्दी और जो ईरान के उस टाइम के हेड थे उन्होंने फतवा दिया था जो इमाम थे उनके सबसे बड़े उन्होंने फतवा दिया था कि इस बंदे को जो मारेगा उसे मैं इनाम दूंगा और उस बंदे ने जाके यूके में वो रहना शुरू हो गया और अभी तक वो जिंदा है 1970s में उसने वो बुक लिखी थी वर्सेस ऑफ सैटनिक वर्सेस के नाम से and he's still alive. he is still alive and Muslims are pissed about that basically I've उसको never देख के heard. मेरा last few months back I saw a man stabbed him while he was giving a speech in America and but he survived he has so शैतानी जिंदगी है उस आदमी की उसने एक कुरान पाक की वर्सेस लेके तो बुक का नाम रखा था सैटनिक वर्सेस और दैट बुक इज सो पॉपुलर इतनी बिकी थी उसकी बुक के वो दिनों में बहुत रिच हो गया और अभी तक वो बुक बिकती है उसके बाद उसने कितनी किताबें लिखी अल्लाह ताला ने उसे लिखने का बड़ा अच्छा वो फन दिया हुआ है लेकिन ही इज यूजिंग इट इन अ बैड वे उसने फिर इस्लाम छोड़ दिया पहले मुसलमान था वो सलमान रुश्दी नाम है उसका यू कैन सर्च अबाउट हिम सो मुस्लिम्स आर रियली मतलब गुस्से में है उस पर कि क्यों उसको पनाह दी गई उसने हमारे रिलीजन पर अटैक किया और सारा कुछ और उस बुक में इस्लाम के खिलाफ ही बात है बहुत ज्यादा बोल्ड तरीके से एक देखो एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप किसी को हर्ट किए बगैर वो बोलते हैं ठीक है और एक होता है कि आप किसी को जानबूझ के अनॉय करने के लिए बोलते हैं तो कुछ वैसी बुक होगी उसकी लेकिन मोस्टली स्कॉलर्स कहते हैं उसकी बुक नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि इस तरह की किताबें आपके ज़हन में शैतानी ख्यालात डालती हैं सो देन यू ट्राई टू मतलब थिंक न्यू थिंग आई हैड अ स्टूडेंट उसने मुझे कहा कि उसकी एक फ्रेंड है पाकिस्तान में एंड दैट गर्ल शी आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम शी वाज अ पाकिस्तानी गर्ल शी वाज लास्ट 2-3 years बैक की बात है ये और वो उसके पास कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आपने उनको आंसर दे दिया तो ठीक है वरना वो इस्लाम छोड़ना चाह रही है शी वांट्स टू बी एन एथिस्ट I was really worried. She was a young girl और इस तरह एकदम वो पाकिस्तान में रह के जहाँ पे टोटल मुस्लिम्स रहते हैं एंड शी वाज तो ऐसे सवाल कर रही थी उसने जो सवाल मुझे लिख के भेजे अजीब शैतानी से सवाल थे वो तो उनका कोई आंसर नहीं था कोई उनका सर पैर नहीं था बस किसी को गुस्सा दिलाना हो किसी मुसलमान को तो वो सवाल करने शुरू कर दो और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि वहां पे अगर वो ओपनली ये सवाल करती तो लोग उसको जान से मारते थे इतने लोग एक्सट्रीम है रिलीजन के बारे में तो बट शी वाज
जब आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपके जहन में शैतान जो है वो नेगेटिव थॉट्स डालता है अबाउट रिलीजन। और इसीलिए बहुत सारे मुसलमान बच्चे जो हैं वो एथिस्ट हो रहे हैं आजकल। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट अल्लाह ही जाने क्या निकलेगा। जब मुसलमानों के बच्चे इस्लाम छोड़ेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ताला माफ करे। और उसका कसूर थोड़ा सा हम पेरेंट्स का भी, बल्कि बहुत हद तक है कि हमें पता ही नहीं होता हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला जो आपको तौफीक दे जिंदगी में वही होता है। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, स्पेशली फेथ के बारे में। अगर शैतान आपके पीछे पड़ गया तो औजुबिल्ला पढ़ो, अगर ऐसी बात आए फौरन औजुबिल्ला पढ़ो, बार बार पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, उससे शैतान भाग जाता है और ऐसे ख्यालात नहीं आते। वरना शैतान के लिए बड़ा आसान है आपकी एज के बच्चों के ज़हन में कुछ भी नेगेटिव बात डालना, और फिर उसके बाद स्लोली वो बातें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इंसान जो रियल पाथ है उससे बहुत दूर चला जाता है, रिलीजन से दूर चला जाता है, अनलेस कि वो मुसलमान रहे या ना रहे, वो अलग बात है। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। सो सैटेनिक वर्सेस के नाम से उसकी बुक यू कैन सर्च ऑन गूगल समटाइम एंड यू शुड नो अबाउट दिस। The year he wrote the book, I was born in that year, 77 78 में उसने लिखी थी। So he is, और वो अभी भी देखने में इतना कोई ओल्ड नहीं लगता। उसके बाद उसने किसी मशहूर इंडियन कोई मॉडल थी उससे शादी भी की, दूसरी या तीसरी शादी, 3 4 शादियां कर चुका है वो। और अब उसका कोई रिलीजन नहीं है। और उसके बाद एक और औरत थी, शी वाज फ्रॉम इंडिया, तस्लीमा करके उसका नाम था, उसने भी इस तरह की फजूल बातें करनी शुरू कर दी। तो इस तरह के लोग आपकी लाइफ में ज्यादा आएंगे, हमारी लाइफ में भी आए हैं। बट व्हेन यू विल बी ऑफ आवर एज, या यू विल बी इन योर 30s 20s, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अजीब अजीब बातें करेंगे। सो यू शुड हैव स्ट्रांग बिलीफ इन एवरीथिंग एंड यू शुड नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर रिलीजन टू आंसर देम बैक, इंस्टेड के वो आपको तो आपके ज़हन में नेगेटिव थॉट्स डालें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और आपके ज़हन में Okay. कोई ऐसा सवाल आए कुछ भी, यू कैन आस्क एनी टाइम। जी बेटा, यू वांट टू से समथिंग? No. I good man. Okay. So ठीक which bit do we write? है। आप राइट करने का इंतजार कर रहे हो, आप याद करो। आज आज हम लिखते नहीं है, कल हम I लिखेंगे उसको। already wrote it all. और आज मैं सोची से लिखने को नहीं दूंगी दोहा। I wrote it all. रोटे माल अनाय आपने लिखा No. नहीं? अच्छा, फिर आज नहीं लिखेंगे हम। दो आप भेज दो, आपका हो गया, ठीक है, हम कल नेक्स्ट टाइम इसको Okay. लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। Okay. और जबर जेर लगाइए उसके ऊपर, फतहा दमा कसरा। No. नो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैं आपका टेस्ट कब ले सकती हूँ? You have You done could 4 take it pages. anytime. You have done Oh, 4 pages. can you take my like all the class when Inshallah welcome? ठीक, what? All the Saturday class? या श्योर। ये 4 पेजेस आप याद कर लें, किसी भी Okay. सैटरडे को आके आप मुझे टेस्ट दे सकते हो। You can come any day and give me the test. I can Okay. can I Okay? give you on the Saturday class? Yeah, this Saturday, day after tomorrow or next week? कब दोगे? Next week. नेक्स्ट वीक, ठीक है। Next फिर week नेक्स्ट वीक तक हमारे 2 Saturday. पेजेस, तो 6 पेजेस हो जाएंगे। शुरू वाले रहने दो अभी, हम यहाँ से शुरू करेंगे टेस्ट, ठीक है, शदीद से। Okay. पेज नंबर 8 7 8 एंड 9 10 अभी तक हमने किया, ठीक है। आगे भी हम 2 और पेजेस कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम जितने भी आप लोगों के हो गए नेक्स्ट वीक तक, फिर उनका टेस्ट Okay. लेंगे। ओके। आपने What day? बनाया सैटरडे को, आप किसी भी सैटरडे को आ जाना टेस्ट देने। आप Okay. आना, मैंने ऑलरेडी टेस्ट लिख के रखा होगा, बस करके आप लोग वापस चले जाना, 30 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। ओके, Okay. दैट विल बी गुड। ओके, ट्राई टू रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड देन एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी ना। कितने पेजेस हैं इसमें? इट सेज 14। अच्छा, ठीक है, गुड इनफ। तो हम ये सारा कंप्लीट ही कर लेंगे अगली दफा इंशाल्लाह ताला। इजी हैं ये सारे। Next class. ओके, इंशाल्लाह ताला। फिर चलो, फिर जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास करेंगे, Okay. ठीक है ना? थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। Love is. अल्लाह हाफिज़ बेटा।